اس فلم کی شروعات ہوتی ہے ایک لڑکی ٹیری سے، جو ایک چھوٹے سے شہر سے نیو یارک شفٹ ہوئی ہے۔ وہ ایک ڈانسر ہے اور ڈانس کی دنیا میں کچھ کرنا چاہتی ہے۔ آج جب وہ ایک شو کر رہی تھی تو اچانک اس کا پیر مڑ گیا، جس سے اس کے اینکل ٹخنے کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے۔ وہ درد کی وجہ سے بری طرح چلانے لگی اور شو کو بیچ میں ہی بند کرنا پڑتا ہے۔ اس سے ٹیری کافی مشہور ہو گئی کہ ایک ڈانسر جس کی شو کے دوران اینکل کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے وہ گر گئی، جس وجہ سے شو بند کرنا پڑا۔ اب اس کے اینکل کو ٹھیک ہونے میں کچھ مہینے لگ گئے۔ ٹیری اپنے ایک دوست کے ساتھ رہتی ہے، لیکن کافی ٹائم سے انہوں نے فلیٹ کا رینٹ نہیں دیا تھا، اسی لیے ان کی فلیٹ میٹ اس کی دوست کو کہتی ہے کہ ٹیری سے کہو وہ بھی اپنا رینٹ اتار دے۔ ٹیری کافی بہتر ہو گئی تھی، اس لیے کئی جگہوں پر وہ آڈیشن دیتی ہے تاکہ اسے ڈانسر کے طور پر چن لیا جائے، لیکن اسے کوئی بھی نہیں چنتا، جس وجہ سے وہ کافی پریشان ہو گئی کیونکہ اسے کام کی ضرورت ہے، جبھی تو وہ پیسے کما سکے گی۔ اب اگلے دن وہ پھر سے آڈیشن دینے جاتی ہے۔ اس بار جو ججز تھے وہ ٹیری کو پہچان لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم وہ والا موو کر کے دکھاؤ جو کرتے ہوئے تم گر گئی۔ اب حالانکہ وہ کافی کوشش کرتی ہے اس موو کو کرنے کی، لیکن کہیں نہ کہیں اس کا پیر ابھی بھی کمزور تھا، اسی لیے وہ ٹھیک سے نہیں کر پاتا۔ اب ان میں سے ایک پروڈیوسر جو پچھلے شوز میں کافی بار ٹیری کو دیکھ چکا ہے، وہ اس سے پوچھتا ہے کہ تم کہاں پلی بڑی ہو؟ ٹیری جواب دیتی ہے میں ایک فارم ہاؤس میں پلی بڑی ہوں جہاں پر پگز کو پالا کرتی ہے۔ یہ سن کر پروڈیوسر بڑی عجیب بات بولتا ہے۔ اس نے کہا کہ اگر تم پگ کی طرح اپنی باڈی کا پچھلا حصہ ہلاؤ تو شاید میں تمہیں کام دے دوں۔ یہ سن کر ٹیری کو بہت برا لگا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ وہ کہتی ہے کہ بھلے ہی مجھے کام کی ضرورت ہے، لیکن کام کو پانے کے لیے میں اتنا نیچے نہیں گر سکتی کہ ایسی بری حرکتیں کروں۔ جس کے بعد وہ باہر آ گئی۔ وہ کافی ٹینشن میں آ جاتی ہے اور اسے ڈپریشن کی گولیاں کھانی پڑتی ہیں۔ ابھی وہ دیکھتی ہے کہ پروڈیوسر وہاں سے جا رہا ہے، اس لیے وہ بھی اس کا پیچھا کرتی ہے۔ اس کی بلڈنگ تک آ گئی اور ریسیپشن پر جا کر کہتی ہے کہ میں اس آدمی سے ملنا چاہتی ہوں۔ اسے انتظار کرنے کا کہا جاتا ہے، لیکن اچانک ٹیری کی طبیعت خراب ہو گئی کیونکہ اس نے ڈپریشن کی بہت زیادہ گولیاں کھا لی تھی، اسی لیے وہ باہر آ کر الٹی کر دی۔ ایک بوڑھا کپل جو وہاں سے گزر رہا تھا وہ ٹیری کو دیکھ لیتے ہیں۔ کپل میں عورت جس کا نام منی ہوتا ہے وہ ٹیری کو سنبھالتی ہے۔ اب یہ کپل بھی اسی بلڈنگ میں رہتا تھا جہاں پر پروڈیوسر رہتا ہے۔ پھر اگلی صبح جب ٹیری کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ خود کو اس بوڑھے کپل کے گھر پاتی ہے۔ وہ لوگ ٹیری سے کافی اچھے سے پیش آتے ہیں۔ اب ٹیری کام میں منی کی مدد کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ میں ایک بیلی ڈانسر ہوں، جس پر منی کہتی ہے کہ دیکھنا ایک دن تم بہت بڑی ڈانسر بنو گی، جو سن کر ٹیری کو کافی اچھا لگتا ہے۔ وہ بتاتی ہے کہ میری اینکل کی ہڈی ٹوٹنے سے فریکچر ہو گیا ہے، جس وجہ سے میں اچھے سے ڈانس نہیں کر پا رہی ہوں۔ خیر اب وہ کپل ٹیری کو سامنے والے فلیٹ میں لے کر گئے اور بتاتے ہیں کہ یہ بھی ہمارا ہی فلیٹ ہے، اگر تم چاہو تو یہاں پر رہ سکتی ہو اور تمہیں پیسے دینے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سن کر ٹیری کو حیرت ہوئی۔ وہ پوچھتی ہے کہ آپ لوگ میری مدد کیوں کر رہے ہیں؟ وہ جواب دیتے ہیں کیونکہ ہمارا کوئی وارث نہیں ہے، ہمیں جب بھی موقع ملتا ہے کسی کی مدد کرنے کا ہم ضرور کرتے ہیں۔ یہاں پر پہلے ایک لڑکی رہا کرتی تھی، لیکن ایک دن وہ بنا بتائے پتہ نہیں کہاں چلی گئی، تب سے ہی یہ فلیٹ خالی ہے۔ اور اب ٹیری اپنے فلیٹ میں جا کر سامان پیک کرتی ہے اور اپنی دوست کو بتاتی ہے کہ مجھے رہنے کے لیے ایک بہت اچھی جگہ مل گئی ہے، اس سے بھی اچھی بات یہ ہے کہ مجھے کوئی پیسے بھی نہیں دینے پڑیں گے۔ یہ سن کر اس کی دوست سمجھاتی ہے کہ ایسا مت کرو، تمہیں اس طرح اجنبیوں پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن ٹیری اس کی بات سننے کو تیار نہیں اور سامان لے کر اس فلیٹ میں آ جاتی ہے جس کا نام ہے اپارٹمنٹ 7A، جو اس فلم کا نام بھی ہے۔ وہ جب اپنا سامان سیٹ کر رہی تھی تو اسی لڑکی کا جوتا ملتا ہے جو پہلے یہاں پر رہا کرتی۔ پتہ چلتا ہے کہ اس لڑکی کا نام جوان ہے۔ تبھی یہاں منی بھی آ گئی۔ ٹیری اس سے جوان کے بارے میں پوچھتی ہے، اس پر منی کہتی ہے کہ ہم زیادہ کچھ نہیں جانتے۔ ایک دن اس کے من میں پتہ نہیں کیا آیا، وہ اپنا سامان پیک کر کے یہاں سے چلی گئی۔ منی بتاتی ہے کہ شام کو ہمیں ایک آدمی نے ڈنر پر بلایا ہے، اب وہ اور کوئی نہیں بلکہ پروڈیوسر ہوتا ہے جس سے ٹیری ملنا چاہتی ہے۔ رات ہوتے ہی وہ اس کے گھر پہنچ گئی۔ پروڈیوسر بتاتا ہے کہ منی اور اس کا ہسبینڈ نہیں آ پائے، لیکن ٹیری کو سن کر کوئی فرق نہیں پڑا کیونکہ وہ تو پروڈیوسر سے ملنا چاہتی تھی، جو اب اس سے کافی اچھے سے بات کرتا ہے اور پوچھتا ہے کہ تم بیلی ڈانسر کیوں بننا چاہتی ہو؟ ٹیری بتاتی ہے کہ ایک کار ایکسیڈنٹ میں میرے موم ڈیڈ کی موت ہو گئی، جس دکھ سے میں ڈپریشن میں چلی گئی، لیکن جب بھی میں ڈانس کرتی تھی تو مجھے بہت اچھا محسوس ہوتا تھا، اسی لیے میں ایک بہت بڑی ڈانسر بننا چاہتی ہوں۔ اب وہ ٹیری کو پینے کے لیے ایک ڈرنک دیتا ہے، جسے پیتے ہی اسے عجیب طرح کے خیال نظر آنے لگتے ہیں، جیسے اس کے چاروں طرف بہت سارے ہاتھ ہیں، پھر بہت سارے کالے کپڑے پہنے لوگوں نے
उसे स्टार के बीच में लिटाया हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे वो कोई रिचुअल जादू कर रहे हैं। जी हाँ, तभी एक शैतान भी नीचे से उसकी तरफ आने लगता है। खैर अगली सुबह जब टेरी की आँख खुली तो वो अभी तक वहीं थी, पर तभी उसके पास प्रोड्यूसर आया। वो बताता है कि रात हम दोनों ने बहुत अच्छी गुजारी और अब मैं तुम्हें अपने प्ले में काम दे रहा हूँ। जो सुनकर टेरी बहुत खुश हो जाती है। अगले दिन वो प्रैक्टिस करने जाती है जहाँ प्ले की लीड डांसर उसका मजाक बनाने लगती है। टेरी को जब अजीब महसूस हुआ वो वॉशरूम जाती है। उसने देखा कि मेरे टांगों पर अजीब तरह के लाल निशान हैं। वो समझ जाती है कि जरूर रात को मेरे साथ कुछ बहुत बुरा और जबरदस्ती हुआ है। फिर जब वो घर वापस जाती है तो सबसे पहले वो मिनी के फ्लैट में गई जहाँ उसकी पड़ोसन भी। मिनी उसे कहती है कि ये तुम्हारे एंकल को देखना चाहती है। पड़ोसन एंकल को चेक करके उस पर एक मरहम लगा देती है और उसे टेरी को देते हुए कहती है कि बेटा ये तुम लगाती रहना, बहुत जल्द तुम्हारा एंकल बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लेकिन अब टेरी को यहाँ के सभी लोगों पर शक होना शुरू हो गया था क्योंकि वो लोग उसे अजीब नजरों से देखा करते थे। रात को टेरी मरहम लगाकर सो जाती है जहाँ उसे एक बार फिर अजीब सा सपना आया। वो अपने सामने एक अजीब तरह का क्रिएचर देखती है। इससे पहले वो हमला करता टेरी की आँख खुल गई। वो ठीक से सो भी नहीं पाती, काफी डिस्टर्ब होती है। फिर अगली सुबह जब उसकी आँख खुली तो देखती है कि उसका एंकल पूरी तरह से ठीक हो गया है, जैसे कभी कुछ हुआ ही ना हो, जिससे वो समझ गई कि उस मरहम ने बिल्कुल सही काम किया है। इसलिए आज वो प्रैक्टिस के दौरान काफी अच्छा परफॉर्म करती है। उनका ट्रेनर भी टेरी की काफी तारीफ करता है, जिससे उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। इसलिए वो अपने रूममेट फ्रेंड को एक पार्टी में लेकर जाती है जहाँ बड़े बड़े लोग आए हुए थे। इन्हीं में एक डॉक्टर भी था जो टेरी को अपना कार्ड देते हुए कहता है कि तुम्हें जब भी किसी चीज की जरूरत पड़े तो मेरे नंबर पर कॉल कर देना। और अब जब टेरी किचन में गई तो वो मिनी और उसकी पड़ोसन को किसी बात पर बहस करते हुए देखती। टेरी जब उनसे वजह पूछने की कोशिश करती है तो वो नहीं बता और पड़ोसन मुंह बनाकर यहाँ से चली जाती। तभी यहाँ पर मिनी का हस्बैंड भी आ गया जो अपने साथ एक बड़ा सा बॉक्स लाया था। वो टेरी को बताता है कि इसके अंदर तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। वो खुशी खुशी बॉक्स को खोलती है जिसके अंदर काफी खूबसूरत कोट था। मिनी का हस्बैंड कहता है कि इसकी जेब में एक और गिफ्ट है और जब टेरी ने चेक किया तो वो एक लॉकेट था। वो कहते हैं कि ये तुम हमेशा पहन के रखना, ये तुम्हारी अच्छी किस्मत के लिए है। इसीलिए टेरी अपने फ्लैट में आकर उस कोट और लॉकेट को पहन लेती है। पर अचानक उसे ऐसा लगता है जैसे किसी शैतान ने उसका पेट पकड़ लिया हो। वो काफी डर गई, फौरन ही उसे उतार कर फेंक देती है। यहीं पर उसकी दोस्त भी थी। उसने जब पूछा कि क्या हुआ तो टेरी कुछ बता ही नहीं पाता। अगले दिन टेरी के पेट में दर्द होता है, उसे उल्टी भी हो रही थी, इसीलिए वो डॉक्टर के पास जाती है, उसी के पास जिसने उसे अपना कार्ड दिया। वो टेरी को चेक करके बताता है कि तुम माँ बनने वाली हो। जो सुन वो काफी परेशान हो जाती है क्योंकि वो फिलहाल कोई बच्चा पैदा करना नहीं चाहती। उसे डांसर बनना है, अपना कैरियर बनाना है। उसकी दोस्त पूछती है क्या तुम इस बारे में प्रोड्यूसर को बताओगी? टेरी उदास होते हुए कहती है कि नहीं, क्योंकि वो इस बच्चे को कभी कबूल नहीं करेगा, वो मुझे प्ले से भी निकाल देगा। इसलिए मैं इस बच्चे को मरवा कर अपने काम पर ध्यान दूं। और अब के बाद से टेरी के साथ और ज्यादा अजीब चीजें होना शुरू हो गई थी। वो जब मशीन में कपड़े धो रही थी तो उसे किसी के होने का एहसास हुआ और जब उसने मशीन में झांक कर देखा तो वहाँ एक बच्चा था जो शैतानी बच्चा लग रहा था और वो टेरी को घूर रहा होता है, जिससे वो घबरा गई लेकिन खुद को शांत करती है ये सोचकर कि ये मेरा वहम है। अगले दिन जब वो प्ले में गई तो प्रोड्यूसर उससे मिलने आया। कहता है कि मैं जानता हूँ तुम माँ बनने वाली हो और मुझे इस बच्चे से कोई मसला नहीं है और मैं चाहता हूँ कि तुम इसे पैदा करो। ये सुनकर टेरी थोड़ा खुश होती है लेकिन उसे यकीन नहीं आ रहा था कि प्रोड्यूसर ऐसे कह रहा है। इसके बाद वो अपने फ्लैट में वापस आ गई जहाँ मिनी और उसका हस्बैंड पहले से ही मौजूद। टेरी उन्हें देखकर काफी हैरान रह गई, पूछती है कि आप लोग यहाँ कैसे आए? वो बताते हैं कि फ्लैट की हमारे पास एक्स्ट्रा चाबी थी और हम जानते हैं कि तुम प्रेग्नेंट हो, इसलिए हम तुम्हें कल डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे। टेरी ने साफ साफ मना कर। वो बताती है कि मैं इस बच्चे को पैदा ही नहीं करूंगी, पेट में ही मरवा दूंगी। मिनी कहती है ऐसा करना गुनाह है, अगर तुम्हें ये बच्चा नहीं चाहिए तो बस तुम पैदा कर देना, हम खुद ही इसे पाल लेंगे। वैसे भी हमारी कोई औलाद नहीं है और इसके बदले हम तुम्हें अच्छे खासे पैसे देंगे, इससे तुम्हारा भी फायदा होगा, तुम्हारा डांसिंग कैरियर बन जाएगा। तब टेरी उनकी बात मान जाती है। लेकिन रात को जब वो सो रही थी तो उसे फिर से भयानक सपना आया
जिसमें बहुत सारे लोग अजीब तरह के कपड़े पहनकर, मास्क लगाकर उसके चारों तरफ खड़े हैं और कोई रिचुअल कर रहे हैं। और तब टेरी की आंख खुल जाती है। उसे एहसास हुआ कि बाहर कोई खड़ा है और जब उसने लाइट जलाकर देखा तो वहाँ मिनी की पड़ोसन थी। वो कहती है कि मैं इस बच्चे को दुनिया में आने नहीं दूंगी। वो टेरी पर हमला कर देती है। अपनी जान बचाकर वो एक कमरे में जाकर खुद को लॉक कर लेती है। तभी औरत नीचे गिर पड़ी क्योंकि उसे दिल का दौरा पड़ा था। ये देख टेरी फौरन एम्बुलेंस को कॉल करती है और वो फौरन उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। टेरी उस कपल से पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया। मिनी बताती है क्योंकि उसका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है, इसीलिए उसने तुम पर हमला कर दिया। जब दोनों वहाँ से चले गए तो टेरी को अपने फ्लैट में एक खुफिया दरवाजा मिलता है। वो जब अंदर जाती है तो उसे पता चला कि ये सीधा उस पड़ोसन के घर जा रहा था। टेरी पड़ोसन के घर आकर चेक करती है जहाँ बहुत अजीबोगरीब चीजें पड़ी हुई थी। उसे एक किताब भी मिली जिसके अंदर शैतान का जिक्र था और ये बिल्कुल वैसा ही शैतान था जिसे टेरी अपने सपनों और ख्यालों में देखा करती थी। यहीं पर एक लड़की की तस्वीर भी थी जो शैतान के बच्चे को पैदा कर रही थी। तभी टेरी को किसी के आने का एहसास हुआ, इसीलिए वो किताब लेकर वापस अपने फ्लैट में आ जाती है, जिसके बाद वो प्रैक्टिस करने जाती है। लेकिन अचानक लेट डांसर का पैर अपने आप ही मुड़ गया। वो नीचे गिर गई और उसका पूरा जिस्म अजीब तरह से मुड़ने लगता है, इसलिए फौरन उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। अब उसके बाद प्रोड्यूसर टेरी को कहता है कि मैं चाहता हूँ तुम लेट डांसर बनकर लीड करो, जिससे वो काफी खुश हो जाती है क्योंकि ये उसका सपना था। फिर वो दिन भी आ जाता है जब इनका शो था। टेरी की परफॉर्मेंस होती है और वो काफी अच्छा भी करती है, जिसके बाद वो अपने घर आ गई। उसने देखा कि पेट अचानक से फूल गया है और अंदर बच्चा हिल रहा है जैसे बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। ये देख वो काफी परेशान हो गई और उसे डॉक्टर को कॉल करती है जिसने अपना कार्ड दिया था। वो कहता है कि बच्चे की सेफ्टी के लिए तुम्हें हॉस्पिटल में दाखिल करना पड़ेगा। ये सुन टेरी सोच में पड़ जाती है कि आखिर सबको इस बच्चे की इतनी फिक्र क्यों है। तभी उसने नोटिस किया कि दरवाजे के बाहर मिनी है। टेरी दरवाजे को लॉक कर देती है और कहती है कि मैं बहुत थक गई हूँ, आराम करना चाहती हूँ, आप कल आ जाना। इसलिए मिनी वहाँ से चली जाती और अब टेरी कैसे भी करके इस बिल्डिंग से निकलना चाहती है क्योंकि उसे भी पता चल चुका है कि इस बिल्डिंग में कोई बहुत बड़ी गड़बड़ है। इसीलिए वो अपना सामान पैक करके वहाँ से निकल जाती है और उस लड़की के बारे में सर्च करने लगती है जो उससे पहले वहाँ रहा करती, जिसके बारे में मिनी ने बताया था, यानी कि जॉन। टेरी जॉन के बारे में हर जगह पता करती है जहाँ उसकी मुलाकात एक आदमी से हुई। टेरी पूछती है कि जॉन कहाँ है। वो आदमी बताता है कि कुछ महीने पहले वो अचानक ही गायब हो गई, लेकिन उसका सामान आज भी हमारे पास। टेरी उसका सामान चेक करती है जिसमें उसे एक बाइबल मिलती है। वो देखती है कि बाइबल का वो सफा मुड़ा हुआ है जिस पर शैतान का जिक्र होता है। उसमें क्रॉस भी था। टेरी जैसे क्रॉस को पकड़ती है उसका हाथ जलने लगता है, जिससे वो समझ गई कि मेरे साथ जो भी हुआ है वो शैतान से जुड़ा हुआ है। और अब टेरी उस शैतानी किताब को जो उसे पड़ोसन के घर से मिली थी उसे चर्च में लेकर जाती। वो किताब नन को दिखाती है। नन उसे बताती है कि कुछ महीने पहले जॉन भी इस किताब को लेकर आई थी। वो काफी डरी हुई और परेशान थी। लोगों का कहना है कि कुछ लोग उसके पीछे लगे हुए थे, लेकिन उसका एक्सीडेंट हुआ और उसकी मौत हो गई। तभी टेरी के पेट में दर्द होने लगा। नन को जब महसूस हुआ कि वो प्रेग्नेंट है तो वो बताती है कि पहले शैतान ने जॉन को चुना था और अब तुम्हें चुना है। तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वो किसी इंसान का नहीं बल्कि शैतान का बच्चा है और अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। ये सुनकर टेरी फैसला करती है कि मैं इस बच्चे को मरवा दूंगी। इसलिए वो अपने दोस्त के साथ बच्चा मारने के लिए चली जाती। और जब टेरी को लिटाया गया और डॉक्टर उसका बच्चा मारने लगी तभी अचानक टेरी डॉक्टर को जोर से टांग मार देती है, जिससे डॉक्टर पैरालाइज हो गई, यानी कि अब उसके हाथ पैर काम करना बंद हो गई थी। इससे टेरी को अंदाजा हो गया कि मेरे पेट में पल रहा शैतान का बच्चा बहुत खतरनाक और ताकतवर है और वो किसी को अपने करीब भी आने नहीं देगा। अब टेरी को पता था कि उसे क्या करना है। वो अपनी दोस्त को अलविदा कहती है ताकि उसे कुछ हो ना जाए और वापस उसी बिल्डिंग में आ जाती। इस बार टेरी सबसे ऊपर वाले फ्लोर के एक कमरे में गई जहाँ बहुत सारा रिचुअल काले जादू का सामान पड़ा हुआ था। टेरी इस कमरे को पहचान लेती है और उसे सब कुछ याद आ जाता है कि जब उसे प्रोड्यूसर ने ड्रिंक पिलाई थी तो वो बेहोश हो गई और वो सारे लोग उसे इसी कमरे में लाए थे और उस पर एक रिचुअल किया गया था जिसमें ही उसे प्रेग्नेंट किया गया। और तभी यहाँ प्रोड्यूसर भी आ जाता है। वो बताता है कि
तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वो हमारा गॉड है, और जब तुम इस बच्चे को पैदा करोगी जो हमारा गॉड है, तो तुम्हें भी उतनी ही अहमियत इज्जत दी जाएगी जितनी इस बच्चे की हो। ये सुनकर टेरी को काफी गुस्सा आ गया। वो चाकू से प्रोड्यूसर पर हमला करके उसे जान से मार डाला। तभी उसे शैतान नजर आया। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन तभी रिसेप्शनिस्ट ने दरवाजे को बंद कर दिया। दरअसल इस बिल्डिंग में जितने भी लोग थे वो सब आपस में मिले हुए थे। वो काले जादू के शैतानी कल्ट ग्रुप से जुड़े हुए थे, जिसमें वो शैतान की पूजा करते हैं। अब टेरी को अपने सवालों के जवाब चाहिए थे, इसीलिए वो मिनी और उसके हस्बैंड के पास जाती है और उन्हें चाकू दिखाकर पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो वो लोग बताते हैं कि जब हमारे मॉम डैड की मौत हो रही थी तो हमारी मदद किसी ने नहीं, इसलिए हमने शैतान से मदद मांगी और उसकी पूजा करना शुरू कर दी। और तुम्हारे पेट में पल रहा बच्चा शैतान का वारिस हमारे गॉड की निशानी है। एक बार वो दुनिया में आ गया तो पूरी दुनिया में बस शैतान का ही राज होगा, और हम सब कल्ट वाले भी उसके साथ राज करेंगे। टेरी कहती है मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। वो चाकू को अपने पेट में मारने की कोशिश करती है, लेकिन उससे ये हो नहीं पाती, इसीलिए वो बेचारी हार मान जाती है और उन लोगों से कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ कल्ट का हिस्सा बनना चाहती हूँ। वो रो भी रही क्योंकि शायद उसके अंदर कुछ और ही चल रहा था। लेकिन ये बात सुनकर मिनी और उसका हस्बैंड काफी खुश हो जाते हैं। वो टेरी को अपने बाकी ग्रुप के पास ले जाती हैं और सब टेरी के लिए काफी खुश थे। तालियां बजाने लगते हैं और उसका अच्छे से वेलकम करते हैं। फिर रात को ये लोग पार्टी रखते हैं जिसमें टेरी डांस करती है। डांस करते करते वो जानबूझकर खिड़की के पास आकर वहाँ से कूद जाती है। उन्होंने जब देखा तो टेरी की मौत हो गई। ये देखकर वो सब लोग बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। कुछ ही देर बाद यहाँ पुलिस भी आ जाती है पूछताछ करने की। वो एक एक्ट्रेस से सवाल कर रहे थे क्योंकि इस बारे में उसने ही खबर की। तभी यहाँ पर मिनी और उसका हस्बैंड भी आ जाते हैं और जब वो एक्ट्रेस को देखते हैं तो उनके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ उठती है, क्योंकि उनका अगला शिकार ये एक्ट्रेस थी। वो अब उसे अपने जाल में फंसा कर अपने गॉड को पैदा करवाएंगे, क्योंकि जब तक ये उसी दुनिया में नहीं लाएंगे चैन से नहीं बैठेंगे। और इस चक्कर में न जाने वो कितनी मासूम लड़कियों को अपना शिकार बनाएंगे। और इसी भयानक एंडिंग के साथ ही ये फिल्म भी इधर ही खत्म हो जाती है।